Good afternoon, everyone. I am Dr. Gaurangi Shah. I am a consultant at Preventive Health Checkup Department at Hinduja Hospital, Mumbai. I am MD Medicine and I have postgraduate certificate in cardiovascular rehabilitation from UK, and I am working on disease prevention and reversal of the disease since last 12 years. This is 25th year of my practice, and I am exclusively working on disease prevention and reversal. Being a preventive cardiologist, hypertension and dyslipidemia, these two are my core areas. Today we are going to talk on the most important disease, that is hypertension. Most of the people think that it's okay to have BP when you cross certain age, but it is not so. There are so many unknown facts about blood pressure which we are going to talk today and discuss. As you can see in the picture, this tip of an iceberg, blood pressure is the same disease. We call it a silent killer. So, hypertension is a major cause of morbidity and mortality. Mortality means death. Morbidity means a physical disability which prevents you from living your day-to-day normal life. It is an extremely common condition, but it is still underdiagnosed and undertreated. And in more than 50% of the patients of blood pressure, it is not controlled with monotherapy, that is a single drug. They need more than one drug to control their blood pressure. When we record the blood pressure, we see it as a number, but it is not so. The truth is, it is a multi-organ systemic disease. 50% heart attack and 70% paralysis are due to blood pressure. It is the second largest cause of kidney failure after diabetes. And in 85% of the cases, the blood pressure, hypertension is asymptomatic. That means when the blood pressure shoots up, the patient doesn't have any symptom unless he or she develops heart attack or paralysis. When they reach hospital, they are diagnosed with severe high blood pressure. And unfortunately, we don't consider blood pressure a disease. That's a worrisome part. You should never think that blood pressure is an isolated disease. Hypertension is most of the time a lifestyle disorder, and it is usually associated with diabetes, obesity, or cholesterol problem. So whenever you find any of the single disease in any individual, you always have to look for other three, because all these diseases, they go hand in hand. And for all these diseases, therapeutic lifestyle changes is the answer. Medicine is not the answer for all the diseases. For disease prevention and reversal, the first step is therapeutic lifestyle changes, because that reduces your medicine dose. Now, this is very interesting rule of halves. If you look at the severity of blood pressure, many people are not aware how severe the problem of hypertension in society. So let's look at this rule of half. So for every 800 adults in the community, 400 are hypertensive. Hypertensive means either their systolic blood pressure is high or the diastolic or both. Unfortunately, as I told you, in 85% of the case, they are asymptomatic. One. Secondly, we don't have routine habit of checking our blood pressure on regular basis, and that's why they remain undiagnosed. So out of 400, only 200 are diagnosed with blood pressure.
and that too not as a part of screening, that too because when they go to doctor for any other illness, and when their blood pressure is being checked and they come to know that they have blood pressure. Out of that 200, because it is the single reading, your doctor might not start the medicine on first go. He might advise you to make some lifestyle changes, keep a watch on your blood pressure, and then start the treatment. But out of these 200, only 50% they follow the same, the advice of the doctor, and they start the treatment if they need it. Now, out of these 100, only 50% are on correct drug, because for all the diseases, there are guidelines. For what reading, which medicine, for what age group, there are all the criteria are decided by guideline. So most of the people, they start taking medicine from their family member or from their general practitioner. They usually don't go to a specialist because they think blood pressure is very common and they should not take it very seriously. Now, the sad part of our society is people always look for branded clothes, branded watch, branded things everywhere, but they will never look for branded doctors. Branded doctors means you have to go to a doctor who is specialized for that disorder. Like if you have blood pressure, you have to go to a physician or a cardiologist. If you have diabetes or thyroid disorder, you have to go to a physician or an endocrinologist. And most of the people, they go to nearby doctor or they whatever whosoever doctor they know, and just start the medicine. They don't even Google. They Google for 10,000 rupees mobile, but they will never Google for the disease which they are carrying in their body, and that's the sad part. I hope now onwards, all of you are who are listening to this, at least you make sure that whenever you have some disorder in your body, always try to get information about it and go to a proper doctor so that you are being treated in an appropriate way and you don't end up with the complication of the disease. So coming back to the slide, out of 100, only 50% are on correct drug. Now, only correct drug is not important. Correct dose is equally important. So out of this 50, only 25% are on correct dose of correct medicine for blood pressure. So how we decide the correct drug and dose? Because the goal of blood pressure is when you are taking medicine, your blood pressure should be less than 130/80 throughout 24 hours. That means you have to monitor your blood pressure at least twice in a day for the first month of your starting the medicine, so that your doctor can titrate your medicines. Most of the people, they check their sugar when they are on diabetes medicine. They check their cholesterol when they are on statin or lipid lowering medicine, but they never ever or hardly check their blood pressure when they are on blood pressure medicine. So then what happens when you take medicine in the morning, and if you don't check your blood pressure after 12 hours, most probably the effect of medicine is gone away and your blood pressure starts to shoot again. Now you are not checking your blood pressure after 12 hours. Your body is not giving signal. As I told you, 85% of the patients of blood pressure, they are asymptomatic. You don't have any symptoms, but your vital organs have to work against this high blood pressure for good 12 hours in a day. So what happens? Your BP is controlled for 12 hours and uncontrolled for another 12 hours. Ultimately, at the end of 5, 10, 15 years, you end up with either a heart failure or a kidney failure. And you think that you are taking regular medicine still. How this can happen? Because you never keep a check on your blood pressure, nor you bother to keep your BP under control throughout 24 hours. Understand? So now onwards, you have to remember this. Those who are having blood pressure or those who are on medicine, at least keep a track of your blood pressure for 1 month, twice in a day. BP medicine has nothing to do with your food. Most of the people, they wait for their breakfast, their food, and then they take the medicine. Please don't do this. You have to take blood pressure medicine at fixed time. That will give you better result. And it has nothing to do with your food, unlike diabetes. So this has to be clear in everyone's mind.
Now, what is ideal blood pressure? So this is latest guideline JNC 8 classification, Joint Nation Committee 8 classification. Now this criteria, these numbers are being decided based on world data. We have registry where everyone records at which BP reading patient develop heart attack, which BP reading they develop paralysis, or which BP reading they develop kidney failure. And based on this data analysis, the guidelines are being formed. ऐसा ऐसा नहीं है कि किसी के मन में कोई नंबर आया और उन्होंने वो नंबर बोल दिया and then this is the like 120/80 is the number. It's not that. It's all based on the data. So looking now, coming to the classification. So as per the guideline, at any age, at any given time, your blood pressure should be less than 120/80, and this is normal. If your blood pressure is between 120 to 139 systolic and 80 to 90 diastolic, that means you are a pre-hypertensive. Not all pre-hypertensive patient requires medicine, so you have to make your therapeutic lifestyle changes, which I'm going to teach you or to discuss about it in a later slides. So if your blood pressure is falling into pre-hypertension category, you have to work on your lifestyle, bring therapeutic lifestyle changes to your routine, and monitor your BP for 1 to 3 months. And despite of all this, if your blood pressure is remaining high, then your doctor will prescribe you the medicine. Blood pressure reading of 140 to 159 and 90 to 99, we call it stage 1 hypertension. And most of the time, during stage 1 hypertension, a single monotherapy, single drug is sufficient to control your BP along with lifestyle changes. But if your blood pressure is more than 160/100, you should not wait for therapeutic lifestyle changes or the BP monitoring for 1 to 3 months. You should start BP medicine straight away as per your doctor's advice. And most probably, you need more than one drug to control your blood pressure when your BP is more than 160 and 100. Now coming to isolated systolic hypertension, this is commonly seen in elderly people. What happens as you grow old, like elasticity of your skin, जैसे उम्र के साथ आपको झुर्रियाँ आती है because of reduced elasticity of the skin, आपकी जो arteries होती है, veins होती है, उसकी wall भी elasticity कम हो जाती है. So that time आपका systolic blood pressure ज्यादा रहता है. So इसको हम बोलते हैं isolated systolic hypertension. अब जैसे हम पहले के जमाने में देखते थे, बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि आपका जितना उम्र है उसमें 100 ऐड कर दो, दैट बीपी इज नॉर्मल फॉर योर एज. दैट इज नॉट ट्रू. कोई भी उम्र में, जैसे 65 के बाद भी आपका बीपी 140/90 से कम रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बीपी इससे ज्यादा बढ़ेगा, ऐसे केस में आपको ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है. सो ये ध्यान रहे कि कोई भी उम्र में, यंग एज है आप, तो आपको अपना बीपी 130/80 से अंदर रखना है. 120/80 से अंदर रखे तो सबसे बेस्ट रहेगा. और अगर आप 60 प्लस है तो यू शुड मेक श्योर दैट योर ब्लड प्रेशर शुड नॉट क्रॉस 140/90. अगर उससे ज्यादा आ रहा है, प्लीज कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली एंड स्टार्ट द मेडिसिन, सो दैट आपको पैरालिसिस या हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़े. नाउ ब्लड प्रेशर इन चिल्ड्रन, हम हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चों में थोड़े ना बीपी होता है. दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज लाइफस्टाइल हैज अफेक्टेड ऑल एज ग्रुप. नाउअडेज चिल्ड्रन आर आल्सो ओबेस. बच्चों में भी मोटापा देखने को मिला है बिकॉज ऑफ देयर ईटिंग, बैड ईटिंग हैबिट्स. दे आल्सो हैव हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन हम कभी भी चेक नहीं करते हैं. सो रूटीनली साल में एक बार बच्चों का ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसका बीपी अगर 110/70 से ऊपर है, तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए. 5 से 10 साल की उम्र में अगर आपका बीपी 120/80 से ज्यादा है तो डॉक्टर के पास जाइए. और अगर 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं, उसका अगर बीपी 130/80 से ऊपर है, then also you need to contact your doctor. But most important, as I told you,
ट्राई टू वर्क ऑन देयर लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम पे बिता रहे हैं. दे हार्डली डू एनी physical activity. They are constantly on screen and they are eating very bad or junk food, and that all is creating a problem. So as a parent, देखो बच्चों को तो कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन एज अ पेरेंट ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि आपका बच्चा कोई भी बीमारी से ग्रस्त ना हो. बच्चों को अगर बीमारी आती है, दैट मीन्स इट इज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चे वो ही करते हैं जो आप करते हैं. चिल्ड्रन ऑलवेज इमिटेट अस. वो नहीं करते जो आप कहते हैं, वो करते हैं जो आप करते हैं. So you as a parent, you have to set an example so that your children also learns to follow healthy lifestyle and to protect themselves against the diseases. एडल्ट को महीने में एक बार चेक करना चाहिए. जिनको बीपी का मेडिसिन चालू है उनको हफ्ते में एक बार बीपी चेक करना चाहिए. जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो महीने में एक बार चेक करें. नाउ कमिंग टू द इटियोलॉजी, ब्लड प्रेशर क्यों होता है? सो 90 to 95% केसेस में वो एसेंशियल और इडियोपैथिक होता है. दैट मीन्स द कॉज इज नॉट नोन. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग क्या करते हैं, just because their parents are hypertensive and if they get blood pressure they start blaming their parents without looking at genetics. सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5% केसेस में. आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि कौन से केसेस में आपको सेकेंडरी कॉजेस के लिए सोचना चाहिए. सो जो प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन जो होता है वो यूजुअली 40 से 60 के बीच में आता है. सो एसेंशियल और हेरिडिटरी हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप्स बिटवीन 40 to 60 years of age. सो अगर किसी को 40 साल के पहले या 60 साल के बाद बीपी आता है तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर सेकेंडरी कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर. दैट मीन्स आपकी बीपी की वजह शरीर में हुई कोई और बीमारी है. आप वो बीमारी को ढूंढे, उस बीमारी को दूर करने की कोशिश करें तो आपका बीपी क्योर हो जाएगा. सो रिमेंबर वन नंबर, लेस देन 40, more than 60 years of age. If you develop hypertension, always look for secondary causes. ठीक है? The most common secondary causes which we are seeing in our routine practice is pheochromocytoma, जो कि हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, जिसमें आपके शरीर में ट्यूमर में से हार्मोन निकलते हैं जो आपका बीपी बढ़ाते हैं. तो उसमें ये ट्यूमर को दूर करने से आपका बीपी ठीक हो जाता है. सेम वे दूसरा कॉमन रीजन जो हम देखते हैं ओल्ड एज में, पर्टिकुलरली रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, किडनी को खून पहुंचाने वाली नली में अगर ब्लॉक है, ऐसे केस में 60 साल के बाद आपका बीपी बढ़ सकता है. तो ऐसे केस में हम उसका वर्कअप करा के उसके ऊपर काम करते हैं तो आपका बीपी का मेडिसिन बंद हो सकता है. नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने पहले भी बताया ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एंड ज्यादातर उसके साथ में डायबिटीज और अदर डिसऑर्डर रहते हैं. सो जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई मिलता है, आपको बाकी बीमारियों के बारे में भी ढूंढने के लिए और बाकी की बीमारियों के बारे में वर्कअप कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए कि आपको बीपी के साथ और कोई बीमारी है कि नहीं है. क्योंकि जैसे मैंने बताया 70% ऑफ द पेशेंट्स विथ बीपी एंड डायबिटीज दे डाई बिकॉज ऑफ आइदर हार्ट अटैक और पैरालिसिस. सो अगर आप उसको टाइम पे डिटेक्ट करेंगे, टाइम पे उसके ऊपर काम करेंगे तो आप ये सारी चीजों से बच सकते हैं या उसको रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं. 60% ऑफ द पेशेंट जिसको बीपी और डायबिटीज साथ में रहता है, उनको 2 से 3 गोलियां लगती है टाइप बीपी कंट्रोल के लिए. तो हमेशा ये याद रहे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें सो दैट आपको कम से कम मेडिसिन की जरूरत पड़े.
नाउ जब भी आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है तो उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 85% of the people the blood pressure is asymptomatic। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हो सकता है ये बीमारी आपके शरीर में 6 महीने या उससे ज्यादा समय से रह रही हो, और जिसके सामने काम करते करते आपके बाकी के ऑर्गन को डैमेज हुआ हो, जैसे ब्लड, हार्ट को, किडनी को, आंखों को। तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है, आप इसमें जो लिखे है वो सारे टेस्ट आपको करवाने हैं। सबसे पहला है ईसीजी और दूसरा है इकोकार्डियोग्राफी। ईसीजी से हमें हार्ट की रिदम का पता लगता है, हार्ट में खून बराबर मिल रहा है नहीं एट रेस्ट वो भी पता लगता है, और कोई रिदम डिसऑर्डर हो तो भी पता लगता है। आपके हार्ट का कोई चैम्बर एनलार्ज हुआ है, बड़ा हुआ है, तो भी हमें ईसीजी से इंफॉर्मेशन मिलती है। सेम विथ इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी जो है उसको आप सिंपल भाषा में हार्ट का सोनोग्राफी भी बोल सकते हैं। इससे हमें हार्ट की जो भी चैम्बर्स है उनकी साइज, उनकी दीवारों की थिकनेस, उनका पंपिंग फंक्शन, हार्ट के जो वाल है उसकी पोजीशन, कोई वाल सिकुड़ गया है, लीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें से इकोकार्डियोग्राफी से मिलती है। तो जिस किसी को भी बीपी डायबिटीज है उनको साल में एक बार ये कराना है, टू चेक टारगेट ऑर्गन डैमेज, ये देखने के लिए कि आपके ब्लड प्रेशर या डायबिटीज ने आपके हार्ट को डैमेज किया है या नहीं किया है। जिस किसी को फर्स्ट टाइम डायग्नोज होता है उनको भी ये टेस्ट करवाने के लिए, ये देखने के लिए कि ये उनका जो बीमारी है वो 6 महीने से ज्यादा टाइम से या कम टाइम से। क्योंकि अगर आपके इको में कॉन्सेंट्रिक एलवीएच मिलती है, दैट मीन्स अगर आपके हार्ट के मसल की दीवारें जाड़ी हो गई है, तो उसका मतलब है आपको 6 महीने के ज्यादा समय से अनकंट्रोल बीपी रह रहा है। ऐसे केस में आपको इमीडिएटली बीपी का मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। यू शुड नॉट वेट फॉर 1 to 3 months बीपी रिकॉर्ड, ये ध्यान रहे। नाउ कमिंग टू सेकेंड इन्वेस्टिगेशन, यूएसजी एब्डोमेन, पेट का सोनोग्राफी। इससे हमें आपके वाइटल ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी और बाकी के स्प्लीन, पैनक्रियाज, ये सारी चीजों पे पता लगता है। ब्लड प्रेशर के या डायबिटीज के पेशेंट में जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये टेस्ट का, वो है आपका किडनी का स्थिति। कई बार आपका ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी की बीमारी की वजह से होता है, या कई बार वाइस वर्सा, आपका बीपी की वजह से किडनी खराब हो सकता है। तो ये जानने के लिए कि आपकी किडनी को डैमेज है या नहीं, साल में एक बार सोनोग्राफी कराना बहुत जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो सोनोग्राफी से हमें मिलती है वो है फैटी लीवर। आजकल बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर देखने को मिल रहा है, और ज्यादा लोग सोचते हैं कि इसको हम निकाल देंगे। तो मैं ये सबको ये बताना चाहती हूँ कि फैटी लीवर का मतलब है फैट आपके लीवर सेल के अंदर डिपॉजिट हो गया है, और उसको आप ऑपरेशन करके भी निकाल नहीं सकते। आप उसको सिर्फ ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर आपका ग्रेड 1 फैटी लिवर है तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके उसको ग्रेड 2 पे प्रोग्रेस होने से रोकना रहेगा। और लीवर सेल में अगर फैट डिपॉजिट हुआ है उसका मतलब ये भी है कि आपके पेट में और जितने भी ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन है, किडनी है और अदर जितने भी ऑर्गन्स है, उसके आजू बाजू भी फैट डिपॉजिट स्टार्ट हुआ है। और जब आपके ऑर्गन के आजू बाजू जब ये फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है, तो वो आपके शरीर में जो इंसुलिन पैदा होता है उसके काम में बाधा डालता है। उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से डायबिटीज आता है। तो हर एक टेस्ट का एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है। आपके डॉक्टर आपको कोई टेस्ट ऐसे ही लिख के नहीं देते हैं। आप जितना रेगुलरली टेस्ट कराओगे उतना आप अपने आप को बीमारी से या बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से बचा पाओगे। सो एवरीवन प्लीज लिसन, अंडरस्टैंड दैट आपको बीपी, डायबिटीज या मल्टीपल रिस्क फैक्टर है, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, तो आपको ये सारे टेस्ट साल में एक बार कराना बहुत जरूरी है, ताकि आप बीमारी को आने से पहले रोके। नाउ तीसरा टेस्ट है यूरिन फॉर माइक्रो अल्बुमिनुरिया। ये जो टेस्ट है वो किडनी का डैमेज सबसे पहले पकड़ता है। बिफोर कि आपका ब्लड टेस्ट में किडनी का रिपोर्ट खराब हो, लाइक क्रिएटिनिन, या सोनोग्राफी में आपका किडनी खराब दिखे, उसके भी पहले स्टेज से
किडनी अगर डैमेज होना स्टार्ट होता है तो यूरिन फॉर माइक्रो अल्बुमिनुरिया से पता लगता है। जिस किसी को भी बीपी या डायबिटीज है उनको साल में एक बार ये टेस्ट जरूर कराना है। रूटीन ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि रूटीन टेस्ट जो है वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, नहीं। रूटीन टेस्ट आपको बहुत सारी और इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपके शरीर में विटामिन B12 डी का लेवल कितना है, आपके कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, आपका लीवर का फंक्शन बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका किडनी का फंक्शन सही है कि नहीं है, आपका थायराइड बराबर काम करता है कि नहीं कर रहा है। 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में PSA कराते हैं, प्रोस्टेट कराते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, कि देखने के लिए कि आपका प्रोस्टेट का कैंसर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे रूटीन ब्लड टेस्ट हैं जो हर इंडिविजुअल को, जिनको बीपी है नहीं है, डायबिटीज है नहीं है, 20 साल की उम्र के बाद और कुछ कराओ न कराओ, साल में एक बार रूटीन ब्लड टेस्ट कराने की आदत जरूर डालें, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ी बीमारी से फ्यूचर में बचाएंगे। आपको जो बीमारी 40 या 50 साल में आती है वो बीमारी जब पैदा नहीं होती है, ये बीमारी जब शुरू होती है जब आप 15-20 साल के होते हो। लेकिन ना हम कभी टेस्ट कराते हैं, ना हम उसके ऊपर काम करते हैं, और जब हम 40-50 साल में बीमारी लेते हैं तो हमें लगता है ये उम्र की वजह से आई, ये हेरिडिटरी की वजह से आई। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यू फेल टू लिसन टू योर बॉडी। आपका बॉडी आपको सिग्नल दे रहा था, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपके शरीर ने 20 साल उसके सामने फाइट दिया, लेकिन आपने कुछ भी करेक्टिव एक्शन नहीं किया, जब जाके ये बीमारी 40-50 में बाहर निकली है। सो कभी भी बिफोर यू ब्लेम योर हेरिडिटरी, योर लाइफस्टाइल, योर स्ट्रेस, योर टेंशन, यू मेक श्योर दैट आपने अपनी हेल्थ में 20 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। रूटीन ब्लड टेस्ट जो होता है वो ज्यादातर लैब में 1200 से 1500 की रेंज में होता है। That means you have to invest 100 to 150 rupees per month in your health. Never ever think that it is an expense. It is an investment. Investment in your health. महीने का 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ में आपको आगे की महीने की 5000 रुपए की दवाई से बचाएगा, ये याद रहे। नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज आई चेकअप। जिनको बीपी या डायबिटीज है उनको रेटिनोपैथी जिसको हम बोलते हैं, आई का डैमेज होने की संभावना ज्यादा रहती है, उनको भी साल में एक बार आई चेकअप कराना चाहिए। और 40 साल की उम्र के बाद रूटीनली भी साल में एक बार आई चेकअप जरूरी है, क्योंकि कई बार कैटरेक्ट, ग्लोकोमा और बहुत सारी इलनेसेस है जो आई से रिलेटेड है। सो ईयर, नोज, थ्रोट एंड आई, ये 4 ऐसे ऑर्गन है जिसको हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं। जब तक आपका बिल्कुल लगता है कि अब काम नहीं चलेगा, जब ही हम जाते हैं ये डॉक्टरों के पास। ऐसा ना करें, साल में एक बार ये रूटीन चेकअप कराना जरूरी है, जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ जिंदगी जी पाए। नाउ पहले और अभी में ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में काफी बदलाव है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत सारा डेटा भी है, गाइडलाइन भी है। सो पहले जब हम ब्लड प्रेशर के बारे में सोचते थे तो हम सिर्फ मेडिसिन देते थे ये देखने के लिए कि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। लेकिन अभी जो शिफ्ट हुआ है ट्रीटमेंट गाइडलाइन में वो ये है कि हम बीपी कंट्रोल करने के साथ साथ बाकी बीमारियों को आने से रोकने पे भी काम करते हैं, और टारगेट ऑर्गन डैमेज प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं। बीपी का मेडिसिन हम उस तरह से टाइट्रेट करते हैं, दवाइयां हम उस डोज में देते हैं, ताकि बीपी की वजह से आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपकी किडनी, आपकी आंखें कुछ भी खराब नहीं हो। सो जो जो मेन पर्पस है ब्लड प्रेशर मेडिसिन का, इट इज नॉट टू कंट्रोल द नंबर्स, इट इज टू प्रिवेंट टारगेट ऑर्गन डैमेज। नाउ कमिंग टू थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना। तो जैसे मैंने बताया, थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस इज नंबर 1 ट्रीटमेंट और नंबर 1 स्टेप फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड डिसीज रिवर्सल। आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आपकी नंबर ऑफ मेडिसिन रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। हर चीज का ट्रीटमेंट दवाइयां नहीं होती है, ये भी हर किसी को याद रखना है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसको आप विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकते हैं।
ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, इट्स द sheer anchor in the management of hypertension and other lifestyle disorder. As I told you, it surely reduces the number of drugs used in that dosage, and हर मेडिसिन का ज्यादा इफेक्ट जब भी मिलेगा जब आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके उसको फॉलो करोगे। ब्लड प्रेशर के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव लाने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोडियम रिस्ट्रिक्शन। सो जिस तरह से हमारा डाइटरी हैबिट्स है, हम वी एंड अप ईटिंग 15 to 20 ग्राम्स पर डे। आइडियली हमें 6 ग्राम से कम सोडियम खाना चाहिए। अब आप रोज खाना बनाने के टाइम पे नापने के लिए तो नहीं बैठ सकते हो ना, ठीक है। सो मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रही हूँ कैसे आप अपना सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं या सोडियम रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। सो पहली चीज है, ट्राई टू अवॉइड एडिशनल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट अवॉइड करिए। ऊपर कोई भी चीज में नमक या चाट मसाला डालने की आदत छोड़ दें। अचार और पापड़ रोज नहीं खाएं। बाहर के रेडी पैकेट्स और नमकीन नहीं खाए, क्योंकि ये सब चीजों में सोडियम कंटेंट हाई होता है। हम जब भी बाहर से कोई पैकेज फूड लेते हैं, रेडी फूड लेते हैं, तो हम हमेशा उसका सर्विंग साइज या कैलोरीज देखते हैं, फैट कंटेंट देखते हैं, बट वी हार्डली लुक एट द सोडियम कंटेंट ऑफ दैट फूड। So ultimately, we end up eating more sodium, and which invites blood pressure or which increases your blood pressure. So सबसे पहला स्टेप है avoid extra salt, 1. Now second rule है, अगर आप बहुत सारी चीजें याद नहीं रख सकते हैं तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। आपके प्लेट में जितनी आइटम है उसमें 50% शुड बी विदाउट सॉल्ट। आधी चीजों में नमक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी में नमक नहीं होगा, सब्जी में होगा। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो चावल में नमक नहीं होना चाहिए, दाल में होगा। सो इस तरह से आप बैलेंस करना सीखे ताकि आपके शरीर में एक्स्ट्रा नमक नहीं जाए, तो आपका बीपी का कंट्रोल रहेगा। नाउ सिर्फ बीपी कंट्रोल करने के लिए ही नमक कम खाना जरूरी नहीं है। कम नमक खाएंगे तो आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेगी। कैसे, वो मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयरन बैलेंस करने का सिस्टम है, और ये सारा हार्मोन और किडनी के थ्रू रेगुलेट होता है। तो जब भी आप शरीर में ज्यादा नमक डालते हैं, सोडियम इज अ पॉजिटिव आयरन, तो शरीर में पॉजिटिव नेगेटिव आयरन का बैलेंस बनाने के लिए शरीर क्या करता है, उसको और कोई पॉजिटिव आयरन को शरीर से निकालना पड़ता है, जो किडनी से यूरिन में से निकल जाता है। तो हमेशा जैसे दुनिया का रूल है, ज्यादा ताकतवर कम ताकतवर को निकाल देता है घर से। सेम वे, अगर सोडियम इज स्ट्रॉन्गर देन कैल्शियम, कैल्शियम इज ऑल्सो अ पॉजिटिव आयरन। तो जब आप ज्यादा नमक खाते हैं तो शरीर के अंदर गया हुआ सोडियम वो शरीर के कैल्शियम को यूरिन से, किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर निकाल देता है, टू कीप बैलेंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयरन का बैलेंस रखने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अब कैल्शियम आएगा कहाँ से? आपकी हड्डियों से। सो जब आप नमक ज्यादा खाते हो तो यू इनवेरिएबली एंड अप वीकनिंग योर बोन्स, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसी वजह से जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे, अगर तू ज्यादा नमक खाएगी तेरी हड्डियां गल जाएगी। So the reason behind this is when you eat more sodium, the calcium is out. So calcium शरीर से निकलेगा हड्डियों से and you will end up with osteoporosis. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहे, आपको रिकरेंट फ्रैक्चर नहीं हो, आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो, प्लीज नमक कम खाए और ये आदत डालें। जो लोग भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे कैंटीन या उसमें उनका रेगुलेशन है, वहां पे यू मेक श्योर कि आप वहां पे टेबल सॉल्ट नहीं रखें। क्योंकि क्या होता है कि आप जहां पे भी टेबल सॉल्ट रखोगे, लोग अनजाने में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से दे टेक द एक्स्ट्रा सॉल्ट ऑन द सलाड्स एंड अदर थिंग्स, एंड यू आर डैमेजिंग योर एम्प्लॉय और योर फैमिली मेंबर्स और योर कलीग। सो हर किसी को आप एजुकेट करें कि ऊपर टेबल सॉल्ट शुड बी स्टॉप। If you really want to protect yourself from blood pressure, if you really want to reduce the number of medicine for your blood pressure, and if you want to keep your bones healthy, so नमक कम खाए, ये फर्स्ट स्टेप है। नाउ सेकंड इज डाइटरी सप्लीमेंटेशन ऑफ
पोटेशियम। जैसे मैंने अभी बताया, दुनिया में शेर के माथे सवा शेर एक ऐसा कहावत है, मतलब समवन इज स्ट्रॉन्गर देन यू, सो पोटेशियम इज स्ट्रॉन्गर देन सोडियम एंड बोथ आर पॉजिटिव आयरन। तो जब आप पोटेशियम वाला डाइट लोगे, वो सोडियम को शरीर से निकालेगा, और सोडियम जब आपके शरीर से निकलेगा, इट विल रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर। अब हाई डाइटरी सप्लीमेंट जो पोटेशियम है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका किडनी नॉर्मल है। आप आंखें बंद करके ज्यादा पोटेशियम वाला डाइट मत लीजिए, क्योंकि पोटेशियम जो है वो आपके हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है। अगर जरूरत से ज्यादा प्रोटीन पोटेशियम लिया तो आपके हार्ट की धड़कन बिल्कुल कम करके आपका हार्ट बंद कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो ज्यादा पोटेशियम का डेंजरस लेवल इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो एवरीथिंग इन मॉडरेशन और बैलेंस इज गुड। मैं सिंपल एक रूल बता दूं, रोज का आप एक नारियल पानी पियोगे अगर आपका किडनी सही है, सो दैट इज बेटर टू कीप योर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। या रोज का एक केला खाओगे, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। बट अगर आप रोज का 3-4 नारियल पी लोगे, या फिर रोज का 1 लीटर मौसमी नारंगी का जूस, या एनी सच हाई पोटेशियम फूड, जैसे कोई लोग बहुत ज्यादा टमाटर, ज्यादा कैबेज, सो यू हैव टू, आप गूगल करोगे आपको हाई पोटेशियम डाइट मिल जाएगा। बट यू ईट इन ऑप्टिमम अमाउंट। अगर आप ज्यादा पोटेशियम खाओगे, यू आर रिस्किंग योर लाइफ, क्योंकि उसमें सीधा हार्ट बंद हो जाता है। सो डोंट टेक चांसेस, हर चीज आपको बैलेंस करके लेनी है। जैसे मैंने बताया, रोज का एक नारियल पानी आपको डैमेज नहीं करेगा अगर आपका किडनी नॉर्मल है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप सोडियम रिस्ट्रिक्शन, सेकंड इज डाइटरी सप्लीमेंटेशन ऑफ पोटेशियम। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, वेट रिडक्शन। जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर ज्यादातर लोगों में ओबेसिटी की वजह से होता है। तो अगर आपका बीपी आपके मोटापे की वजह से है, तो आपको वजन कम करने पे फोकस करना है। 1 किलो जब आपका वजन कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर 2 से 3 मिलीमीटर कम होता है। अब मानो अगर आप 15 केजी ओवरवेट हो, एंड इफ यू रिड्यूस दैट 15 केजी वेट, आपका बीपी 40 से 45 अंक नीचे जाता है। ऐसे केस में अगर आप सिंगल मेडिसिन पे हैं, आपका बीपी का मेडिसिन बंद हो जाता है, और अगर आप 2 या 3 मेडिसिन लेते हैं, तो आपका नंबर ऑफ मेडिसिन कम होता है। नंबर ऑफ मेडिसिन कम इसलिए भी करना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल चीज समझ लो आप, जो कुछ भी हम मुंह के अंदर डालते हैं, चाहे खाना है, चाहे दवाइयां हैं, एवरीथिंग, द लीवर हैज टू मेटाबोलाइज एंड द किडनी हैज टू एक्सक्रीट। तो जितना आप अननेसेसरी चीजें आप शरीर में डालते हो, आपके लीवर और किडनी को आप ओवरलोड कर रहे हो, एंड यू विल एंड अप विद डैमेजिंग दिस टू ऑर्गन्स। सो जितनी चीजें अननेसेसरी हम शरीर में न डालें, वो आपकी ओवरऑल सेहत के लिए अच्छा है। सो हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉलो करके आप नंबर ऑफ मेडिसिन कम से कम पे लेके आ जाओ। ठीक है, वेट रिडक्शन के लिए मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ। फर्स्ट जो वेट रिडक्शन का फॉर्मूला है, वो है सेट अ रियलिस्टिक टारगेट। ज्यादातर लोग महीने में 2, 3, 4, 5 किलो का टारगेट रखते हैं, जो कि वो अचीव नहीं कर पाते हैं। फिर फ्रस्ट्रेट होके वो 3 महीने में अपने सारे एफर्ट्स छोड़ देते हैं। सो फर्स्ट रूल जो है वो है, यू हैव टू सेट रियलिस्टिक टारगेट। तो महीने का आपको 600 से 800 ग्राम का टारगेट रखना है। अब 800 ग्राम वजन जब कम होगा, वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एंड ऑफ 1 ईयर जब आपका 9 से 10 किलो कम होगा, यू विल बी एबल टू सी दैट। ठीक है, तो साल का अगर 8 किलो आप कम करोगे, 2 साल में 15, और 3 साल में आप आराम से 20 से 25 किलो कम करके यू कैन बी ऑफ मेडिसिन। तो जिनको भी मोटापे की वजह से बीपी डायबिटीज है, उनको 2 से 3 साल अपने शरीर पे काम करना है। वंस यू अचीव योर टारगेट वेट, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑफ मेडिसिन हो जाते हो, अनलेस कि अगर आपका रियल में एसेंशियल हाइपरटेंशन है। एसेंशियल हाइपरटेंशन मतलब जिन लोगों के में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उनको बीपी डायबिटीज आने की संभावना 4 गुना रहती है। बट अगर वो अपने लाइफस्टाइल पे काम करेंगे, तो आप इन बीमारियों को रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। सो जिनका फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, उनको थोड़ा ज्यादा एफोर्ड करना है। जिनका नहीं है, उनको भी एफोर्ड तो करना ही है, बीमारी से बचने के लिए भी और बाहर निकलने के लिए भी।
So first step for weight reduction, set a realistic target. Second is persistence. थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबको याद रखनी है कि कोई भी इंसान पूरी जिंदगी उबले हुए सब्जी नहीं खाता है और ना ही कोई पूरी जिंदगी जिम जाता है. सो नेवर एवर यूज दीज टू मीन्स टू रिड्यूस योर वेट. ये दो तरीके से वजन कम करने की कोशिश न करें, क्योंकि जैसे आप अपने रूटीन पे आ जाएंगे आपका वजन वापस बढ़ जाएगा. उससे अच्छा ये है, इंस्टेड यू शुड एडप्ट अ लाइफस्टाइल which you should be able to follow for rest of your life. अपना लाइफस्टाइल वैसा बनाओ जो आप पूरी जिंदगी उसको फॉलो कर पाओ और अपने आप को बीमारी से बचा पाओ. ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज. चौथी चीज, वेट रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डाइट का. 70% योर डाइट वर्क्स, 20% एक्सरसाइज का रोल है, 10% मेडिसिन का रोल है, विटामिन का रोल है. सो डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको स्पेशल डाइट फॉलो करना है. डाइट का मतलब ये है यू हैव टू अवॉइड अनहेल्दी स्टफ एज मच एज पॉसिबल. मैं बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन और एनीवन. हम इतना मेहनत करते हैं अच्छे से खा पी के जीने के लिए, तो अगर वही नहीं करना है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है. सो आपको क्या करना है, you have to reduce the frequency of your unhealthy stuff. अगर आप हफ्ते में 3 बार खा रहे हैं, reduce it to once a week और once in 10 days. खाने को मनाही नहीं है, बट आप उसका फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करो. अनहेल्दी मतलब आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, एडिटेड सॉफ्ट ड्रिंक, रेडी जूसेस, स्वीट्स, नमकीन, जंक फूड, दिस ऑल यू शुड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी. और जिस दिन आप ये अनहेल्दी स्टफ खाते हो, यू हैव टू बैलेंस द कैलोरीज. अगर मानो आपने लंच हैवी हेल्दी या हैवी खाया है, you have to balance the dinner in a calorie. तो आप डिनर लाइट लो या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे चले जाओ, so that you can balance the calories. So try to avoid unhealthy stuff as much as possible. Second is keep minimum 3 to 4 hours gap between your dinner and your sleeping time. So रात को if possible you should have your dinner by 8 o'clock. क्योंकि क्या होता है, आपको आपके स्टमक को खाली होने के लिए 3 से 4 घंटा लगता है. अगर आप उसके पहले सोने के लिए जाते हैं तो आपका स्टमक का एसिड पूरा रिफ्लक्स होके आपके फूड पाइप में चला जाता है. और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को आजकल एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम है, एंड दे कीप ऑन टेकिंग मेडिसिन फॉर एसिडिटी. सो एसिडिटी गैस का मेडिसिन लेने से अच्छा है आप अपना डाइटरी हैबिट्स चेंज करो. कीप मिनिमम 3 to 4 hours गैप बिटवीन योर डिनर एंड योर स्लीपिंग टाइम. द अदर एडवांटेज ऑफ कीपिंग दिस गैप इज, जब आप खाना खा के तुरंत सो जाते हो, एसिड पूरा आपके फूड पाइप में चला जाता है. अब फूड पाइप का जो इनर वॉल है, यूसोफेजियल लाइनिंग, दैट इज वेरी डेलिकेट. अगर आप बाथरूम के टाइल्स पे रोज एसिड डालोगे तो टाइल्स कितना रॉ और खराब हो जाएगा. Same thing happens to your food pipe, which later on can lead to cancer. तो अगर आपको आज का एसिडिटी गैस कल का कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप अपने एसिडिटी गैस को लाइटली मत लीजिए. Keep minimum 3 to 4 hours gap between your dinner and your sleeping time. This will keep you healthy for longer duration. उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कीप मिनिमम 12 hours गैप बिटवीन योर डिनर एंड योर स्लीपिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. सो अगर आपने रात को 8 बजे डिनर किया है, अगले दिन सुबह 8 बजे आप ब्रेकफास्ट करेंगे. सो 12 घंटों का रेस्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मिल जाएगा. पूरे दिन में आपने जो भी खाया है, योर बॉडी विल टाइम टू डाइजेस्ट इट इन अ प्रॉपर मैनर. हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली खाते पीते रहते हैं, सो दैट आगे का खाना पूरा डाइजेस्ट भी नहीं होता है, एंड यू लोड योर डाइजेस्टिव सिस्टम विथ अनदर फूड. सो ये गलती, दिन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी हैव टू एटलीस्ट कीप ईटिंग एवरी 2 to 3 hours और 4 hours. तो आप ये करो कि रात को 12 घंटे अपने पेट को कंप्लीट रेस्ट दो, सो दैट योर बॉडी कैन डाइजेस्ट द फूड विच यू हैव एट ड्यूरिंग द डे टाइम. और ये आपको वेट रिडक्शन में बहुत हेल्प करेगा. सो रात का खाना सोने के बीच में 4 घंटे का गैप, रात का खाना नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बीच में 12 घंटे का गैप. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, जिनको वजन कम करना है,
जिनको डायबिटीज रिवर्स करना है, जिनको पेट के ऊपर से चर्बी निकालना है। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है कि कितना भी करते हैं हमारा पेट कम नहीं होता है। तो उसका वजह ये है कि हम लोग फुल स्टमक खाते हैं, तो यहाँ तक नहीं खाना है, क्योंकि जब आप पेट भर के खाते हो आपका स्टमक 3 गुना बड़ा हो जाता है एंड अल्टीमेटली वो उससे आपका पेट पे चर्बी बढ़ता है और आपका डायबिटीज आता है। तो अगर आपको पेट कम करना है, आपको डायबिटीज नहीं चाहिए, वजन कम करना है, डायबिटीज रिवर्सल करना है, तो आपको नेचुरल तरीके से स्टमक का साइज छोटा करने के लिए जब भी आप दिन में खाना खाते हैं, चाहे आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, हाई टी है, ईट 70% ऑफ योर एपेटाइट। 30% पेट खाली रखे, जितना भूख है उससे कम खाने की आदत डालें। सो 3 चपाती का भूख है 2 खाएं, 2 का भूख है 1 खाएं। ठीक है, तो ये करते रहेंगे। अलोंग विद दैट रोज का कम से कम 3 सीजनल फ्रूट खाने की आदत डालें। 1 केला रोज का रहेगा तो वो ज्यादा हेल्थ को फायदा करेगा, क्योंकि वो ऑल 12 मंथ्स अवेलेबल है और जिनका डायबिटीज है वो भी 1 केला खा सकते हैं। तो आप रोज का 3 फ्रूट खाने की आदत डालिए। फ्रूट और वेजिटेबल्स आप ज्यादा खाएंगे तो ये फाइबर है जो आपके शरीर में, आपके आंती के अंदर चिपकी हुई फैट और पुराना जो भी कचरा है उसको लेके स्टूल में निकल जाएगा। उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जो आपको डायबिटीज रिवर्स करने में, कंट्रोल करने में, पेट कम करने में मदद करता है। सो फाइबर डाइट खाना भूले नहीं। सो इतना जब करेंगे और उसके साथ रोज का 5 से 10,000 स्टेप वॉक करेंगे तो आप इजीली महीने का 500 से 800 ग्राम वेट कम कर सकते हैं। ओनली थिंग इज योर परसिस्टेंट एफर्ट्स आर नीडेड फॉर वेट रिडक्शन। देयर इज नो शॉर्टकट टू वेट रिडक्शन। आपको ग्रेजुअली ये सारी चीजें फॉलो करते रहनी है फॉर 3 गुड 2 to 3 years एंड यू आर डन। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना, ये करना, वो करना नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ रोज का 5 से 10,000 स्टेप्स चल के भी अपने आप को फिट रख सकते हैं। सो वॉकिंग जो है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। वॉकिंग में आपका 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। भगवान ने दिया है 2 पैर लेके जाने हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं उनके लिए बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बड़े बुजुर्ग को बोलो घर के अंदर ही चलने के लिए, ताकि वेनेवर बड़े बुजुर्ग को बोलो कि घर के अंदर ही वॉक करे, ताकि जब भी उनको थकावट लगे वो इमीडिएटली बैठ के रेस्ट कर पाए। तो अगर आप हर घंटे उठ के 5 मिनट भी चलोगे तो 8 से 9 घंटे में यू विल एंड अप वॉकिंग 40 to 45 मिनट्स। और आजकल तो सारे गैजेट्स आते हैं जिसमें आपके स्टेप्स काउंट होते हैं। तो वेट लॉस अगर आपको करना है तो आप 14 to 15,000 काउंट स्टेप्स पर डे का टारगेट लेके चले। और जिनको हेल्दी रहना है वो 10,000 स्टेप से ज्यादा रोज चलते रहे। सो लेस देन 3,000 स्टेप्स इन अ डे इज अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। 3 to 5,000 स्टेप्स अगर आप चल रहे हैं उसका मतलब है आप माइल्ड एक्टिव हैं। 5 to 10,000 इज मॉडरेट एक्टिव एंड मोर देन 10,000 स्टेप्स इन अ डे इज एक्टिव लाइफस्टाइल। सो ये हर किसी को फॉलो करना है। अगर आपको साइकिलिंग पसंद है, कुछ भी नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा उसके एक्सपर्ट से पूछ के ही स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप किसी का देख देख के लोग साइकिल लेके आ जाते हैं और 1-2 दिन में 20, 30, 40 किलोमीटर कर लेते हैं एंड दे एंड अप विथ मसल और बोन इश्यूज। तो ये गलती नहीं करनी है। जो भी एक्सरसाइज आप नए सिले से शुरू कर रहे हैं, प्लीज टेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन और बाद में ही करें, किसी का देख के कुछ ना करें। और एल्डरली पीपल जिनको रेगुलर एक्सरसाइज से भी दिक्कत आ रही है, वो लोग फिजियोथेरापी सेंटर में जाके फिजियोथेरापिस्ट के गाइडेंस में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिजियोथेरापिस्ट आर एक्सरसाइज डॉक्टर्स। हम जिम ट्रेनर की एडवाइस को जितना फॉलो करते हैं उतना फिजियोथेरापिस्ट की एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं। जिम ट्रेनर्स आर नॉट डॉक्टर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो लोग सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, ज्यादा प्रोटीन खिलाते हैं एंड यू
up with your kidney damage. So never ever fall for this. लोग 15 से 18,000 रुपए पर मंथ पर्सनल ट्रेनर को देते हैं, लेकिन यही 15 to 18,000 they are not ready to pay to a physiotherapist who are exercise doctors. So 40 साल की उम्र के बाद with every decade we lose 10% of our muscle mass. और मसल मास जब कम होता है, आपका वजन कम नहीं होता है. ऐसे केस में फिजियोथेरापिस्ट आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं जो कि आपका मसल मास प्रिजर्व करेगा और वो आपको वेट लॉस के लिए प्रॉपर गाइड कर सकते हैं. तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, मैं यही एडवाइस दूंगी, send them to a physiotherapy center to exercise under physiotherapist so that they can live better quality of life. ठीक है. Now coming to stop smoking, tobacco, alcohol. ये सबको ही मालूम है कि स्मोकिंग और टोबैको आपको सारी बीमारियां लेके आते हैं, क्योंकि जब आप स्मोकिंग या टोबैको कंजप्शन करते हैं, वो आपके शरीर में होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ाते हैं, और जब होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ता है, आप देयर इज स्पॉन्टेनियस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन. आपका ब्लड बहते हुए कहीं भी क्लॉट हो जाता है. अगर वो हार्ट में क्लॉट हो गया, हार्ट की नली में, यू विल एंड अप विथ हार्ट अटैक. ब्रेन की नली में हो गया, यू विल एंड अप विथ पैरालिसिस. तो ये सारी बीमारियों से बचने के लिए स्मोकिंग और टोबैको बंद करना चाहिए. लेट मी क्लियर वन थिंग. बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि मैडम वो हम छोड़ देंगे, मैंने बहुत बार छोड़ा है. सो एज पर द रिसर्च डेटा, people who stop smoking or tobacco on their own, 90% of them they restart within first year. इसके लिए हम एडवाइस करते हैं, you should always quit smoking or tobacco under doctor supervision with proper medicine, ताकि आप रीस्टार्ट नहीं करें और अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से बचाएं. Now coming to the debatable topic of alcohol consumption. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि थोड़ा थोड़ा दारू पीना सेहत के लिए सही है, और मेरे बहुत सारे पेशेंट मुझे डॉक्टर्स का ही रेफरेंस देते हैं, मैडम आप मना करते हैं, हमें तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए. तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ, देयर इज रिसर्च डेटा विच वाज कंडक्टेड ऑन 50,000 पीपल, और उसका नतीजा ये था दैट अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग योर हार्ट. तो जो लोग ये सोचते हैं कि अल्कोहल उनके हार्ट के लिए अच्छा है, तो वो लोग प्लीज बंद करें, क्योंकि हार्ट के साथ साथ आपका लीवर भी ये खराब कर सकता है. तो बाकी की अल्कोहल से आपको डायबिटीज भी आ सकता है, बिकॉज अल्कोहल इंटरफियर्स विथ मेटाबॉलिज्म इन लीवर. आपका कोलेस्ट्रॉल जो मेटाबॉलिज्म जो होता है लीवर में, उसमें वो इंटरफियर करता है, और उससे आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी आ सकता है, डायबिटीज भी आ सकता है, और मेल में अल्कोहल से ईडी हम जिसको बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है. तो अगर आप ये सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, अल्कोहल भी आपको बंद करना चाहिए. जो लोग सालों से पीते हैं, वो लोग अगर बंद करेंगे, दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस विड्रॉल सिम्टम्स. तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस है, आप प्लीज साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए. दे वर्क ऑन डी एडिक्शन, दे विल गिव यू प्रॉपर मेडिसिन सो दैट यू कैन क्विट अल्कोहल बेस्ड विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट. तो जिन लोगों को भी आदत है ये सारी, प्लीज उसमें से बाहर आने की कोशिश करें. एक और बात, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैडम हम अल्कोहल नहीं लेंगे, वाइन ले तो कैसा रहेगा. सो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर वाइन ही लेना है, बेटर यू टेक ग्रेप्स, because ultimately it will give you vitamin C, it will give you fiber. फर्मेंट करके ग्रेप्स का लिक्विड पीने से अच्छा या फ्रेश फ्रूट ही खाओ. तो ये सब जो, जैसे वो कहावत है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए. जिस किसी को भी पीना है, वो लोग आइदर डॉक्टर पे ब्लेम करते हैं या फिर ढूंढ ढूंढ के मुझे रिसर्च डेटा भेजते हैं कि देखो इसमें लिखा है कि अल्कोहल हार्ट के लिए सही है. लेकिन ये चीज ये भी है कि बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर नहीं आती है. तो मैं इतना ही कहूंगी दैट आई एम अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल, बिकॉज वी आर सीइंग मेनी पीपल विद डिसीजेस ड्यू टू अल्कोहल. ठीक है. सो समरी, कमिंग टू द समरी, hypertension is a multi-organ disorder and in most of the cases it is asymptomatic. उसको कभी भी you should not consider it as an isolated disease. उसके साथ में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी वर्कअप करना चाहिए. आप
हर कोई चीज जो आपका बीपी कंट्रोल में रखे वो आपको फॉलो करना है, थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस से लेके प्रॉपर डोज मेडिसिन. Always remember the rule of half in blood pressure. As I told you, only 6 to 7% of the people with blood pressure are having proper medicine and proper control, which is alarming. And that is the reason why, despite of taking blood pressure medicine, we are having so many patients with heart attack and paralysis. जो कोई भी बीपी का गोली ले रहा है वो ये ना समझे कि वो प्रोटेक्टेड है. You have to take in a proper dose with 24 hour smooth control. वरना अभी जो हम ज्यादा केसेस देख रहे हैं, वी आर सीइंग मेनी केसेस ऑफ हार्ट अटैक, पैरालिसिस एंड किडनी फेलियर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. सिस्टोलिक बीपी इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज उसमें पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं. तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर इट. पर्टिकुलरली एल्डरली पीपल में सिस्टोलिक बीपी, ऊपर का बीपी बढ़ना नहीं चाहिए, 140 से अंदर रखे दवाई देके. एक मैं और बात कहना चाहूंगी इसके साथ में. ओल्ड एज में जो नीचे का बीपी होता है, डायस्टोलिक बीपी, वो ग्रेजुअली कम होता है या बहुत लो होता है. कई बार 50, 40, 60, किसी का 30, किसी का 0 तक जाता है. तो उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे मैंने बताया, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जिस तरह से लूज होती है, सेम वे आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी भी लूज होती है. ऐसे केस में एक बार डायलेट होने के बाद आर्टरी वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाती है. इसके लिए डायस्टोलिक बीपी आपका कम रहता है. तो डायस्टोलिक बीपी कम का मतलब लो बीपी नहीं होता है, ये ध्यान रहे. बहुत सारे लोग 140, 70, 140, 60 देख के ये सोचते हैं बीपी बहुत कम हो गया, दे एंड अप ईटिंग मोर सॉल्ट एंड शुगर. डोंट डू दैट. आपको बीपी 130, 80 से कम है, दैट इज नॉर्मल एंड यू शुड नॉट बी वरीड. You always have to work on target organ damage prevention. I have explained this in detail, and therapeutic lifestyle changes is the first line of treatment. And now to conclude the last slide for disease prevention, though I am talking about blood pressure, but if you want to protect yourself from any disease in future like blood pressure, diabetes, cholesterol, heart attack, paralysis, follow this. You have to remember WWWVH. Maintain your weight, maintain your waistline, go for walk, take your vitamins regularly, and undergo health check once a year. Now coming to the weight, now most of the people, they look for their ideal weight in Google. So एक चीज याद रखो, आपका जो आइडियल वेट है वो मेंटेन करना पूरी जिंदगी के लिए कोई भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेंटेन योर वेट इन हेल्दी वेट रेंज. हेल्दी वेट रेंज हम किसे बोलेंगे? आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो आइडियल वेट है उससे 10% प्लस या माइनस जो है वो आपका हेल्दी वेट रेंज है. अगर आपका वेट वो रेंज में रहेगा तो आप ज्यादातर ये सारी बीमारियों से बचते रहते हैं. मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ. 5 फीट 2 इंचेस हाइट वाली अगर फीमेल है तो उसका आइडियल वेट होता है 52 kg. उसका 10% माइनस हुआ 47, 10% प्लस हुआ 57. तो अगर उसका वजन 47 के 57 की रेंज में है तो देन शी इज हेल्दी. जरूरी नहीं कि आप अपना आइडियल वेट मेंटेन करो, देन शी कैन प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग एनी डिसीज. सेम रूल, द आइडियल वेट इज डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल. जैसे 5'2" हाइट वाला अगर मेल रहेगा तो उसका आइडियल वेट रहेगा 62 kg. तो उसके लिए जो रेंज है वो रहेगा 57 to 67, 66. तो ये रेंज में अगर आप अपना वेट मेंटेन रखोगे, आप ये सारी बीमारियों से बचे रहोगे. सो नेवर एवर गो फॉर आइडियल वेट. लोग बीएमआई देख देख के पागलों की तरह अपने वेट के पीछे पड़े रहते हैं. प्लीज डोंट डू दैट एंड डोंट पनिश योर बॉडी. ठीक है? इफ यू आर इन हेल्दी वेट रेंज, इट्स गुड, यू आर प्रोटेक्टेड. यू शुड नॉट बी गेटिंग पैनिक अबाउट योर figure and inches and weight. Okay, as long as you are healthy and you are in healthy weight range, it's okay. Second, coming to waistline. आइडियल जो वेस्टलाइन होता है वो होता है आपका हाइट है इन इंचेस डिवाइडेड बाय 2. सो व्हेन यू क्रॉस दिस, you invite diabetes and heart attack. Central obesity is the root cause of development of diabetes and हार्ट अटैक. अगर आप पेट पे चर्बी लोगे
तो आपका डायबिटीज या हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है, बिकॉज इट इज अ मार्कर ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हाथ पैर पतला है लेकिन पेट बढ़ा हुआ है। सो पेट का वजन कम करने के लिए मैंने सारे आपको पेट की चर्बी कम करने के लिए सारे टिप्स मैंने आपको दे दी है। आपको अपना वेस्ट लाइन चेक करना रहेगा अम्बिलिकस लेवल पे, ठीक है। सो अगर किसी मेल का हाइट है 5 फीट 4 इंच, दैट इज 64 इंचेस, तो उसके लिए आइडियल वेस्ट लाइन रहेगा 64 डिवाइडेड बाय 2 32 इंचेस। सो 32, सो बट अपने यहाँ अलग अलग वेराइटी की हाइट, मतलब अलग अलग तरह, अलग अलग लोगों की अलग अलग हाइट रहती है। तो अगर आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना है, आप एक ही नंबर याद रखिए, 34। आपको अपना वेस्ट लाइन अम्बिलिकस लेवल पे 34 के अंदर मेंटेन रखना है थ्रू आउट द लाइफ। अगर आप 34 के अंदर मेंटेन रखोगे, आप ज्यादातर बीमारियों से बचे रहोगे, ठीक है। सो डोंट गो फॉर डिटेलिंग, आप सिर्फ 34 नंबर याद रखिए। वॉकिंग के लिए हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर लिया है, रोज का 5 से 10,000 स्टेप्स हर किसी को चलना है। कमिंग टू द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, विटामिन। I am happy that at least COVID की वजह से everyone started taking vitamins, and I hope everyone will continue this for lifelong. Most of the people think that vitamins are there for energy purpose. They are there only for supplements. It is not there. It is not the fact. The fact is, vitamin का जो main function होता है to regulate your metabolism, and all diseases starts with disturbances in metabolism. जब आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, आपको डायबिटीज होता है। जब आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। जब आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आता है। So it all starts with disturbances in the metabolism at cellular level, और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम विटामिन करता है। A newborn baby also needs vitamins, so everyone should take the vitamins. जो लोग बच्चे हैं, मतलब 1 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन D3 लिखवा सकते हैं। एडल्ट के लिए रोज का 1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और महीने में 2 विटामिन D3 के टैबलेट्स आर मेंटेनेंस डोज। ये 2 टैबलेट आप कोई टेस्ट कराए बगैर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओरल टैबलेट से कभी भी हाइपर विटामिनोसिस नहीं होता है, और इंजेक्शन टैबलेट से ज्यादा बेहतर है ऐसा भी नहीं होता है। इंजेक्शन हम उन्हीं लोगों में देते हैं जिनके आंती में विटामिन, इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन विटामिन का नहीं होता है। सो डोंट गो फॉर इंजेक्शन, या ऐसा भी मत सोचिए कि मैंने 2 साल पहले इंजेक्शन लिया था तो अभी मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर को मेटाबॉलिज्म 24/7 करना है। So your metabolism is 24/7 activity and they need vitamin for it. तो जैसे हम पैसे के लिए रोज काम के जाते हैं, सेम वे योर बॉडी ऑल्सो नीड विटामिन एवरी डे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, एंड डेली टैबलेट्स आर मोर यूजफुल देन मंथली इंजेक्शन। तो फ्यूचर में बीपी डायबिटीज लेके 10 गोलियां खाने से अच्छा है यंग एज से रोज का 1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का गोली खाए और अपने आप को बीमारी से बचाए। सेम विद विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हार्मोन है, लेकिन उसका नाम विटामिन डी है, इसलिए लोग उसको बहुत ही लाइटली ले रहे थे। विटामिन डी हार्मोन होने की वजह से सर से लेके पांव तक हर सिस्टम में उसका रोल है। चाहे डायबिटीज है, चाहे गोल्ड स्टोन है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे पैरालिसिस है, चाहे डिप्रेशन है, ये हर चीज को रोकने के लिए विटामिन डी काम करता है, क्योंकि वो हार्मोन है और शरीर के एक एक हिस्से पे उसका इम्पैक्ट रहता है। तो अगर आप क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ जीते हैं, तो आपके पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है, जो कि इंसुलिन का निकालने का काम करते हैं, उनका फंक्शन, उनके काम में अवरोध पैदा होता है और आपको डायबिटीज आता है। तो अगर आप यंग एज से आपके विटामिन रेगुलर लेते रहेंगे, आपका वजन मेंटेन रखेंगे, आपका वेस्ट लाइन मेंटेन रखेंगे, रोज वॉक करते रहेंगे, तो आप ज्यादातर बीमारियों से बचे रहेंगे। it is prevention is very easy, but sometimes we don't like easy things.
सो आई होप ये सब सुनने के बाद आप सबको ये पता चल गया होगा कि बीपी को कितना सीरियसली लेना है, किस तरह से फॉलो करना है और बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या करना है. नाउ लास्ट वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन रिगार्डिंग विटामिन डी. देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस गोइंग ऑन. बहुत सारे लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज वो लोग धूप में बैठते हैं इसलिए उनको विटामिन डी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज दे आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड दे डोंट नीड विटामिन. तो ये चीज आप समझ लीजिए, बॉडी को मेटाबॉलिज्म को हेल्दी स्टेट में रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर विटामिन B12 लेवल अबव 500 एंड विटामिन डी अबव 50. और ये लेवल कभी भी डाइट से नहीं आते हैं. सो यू शुड टेक वन मेडिसिन to maintain your level so that your system can work normally and you can protect yourself from getting the disease. Now coming to one more myth, धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है. धूप सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सनरेज से, सनलाइट से विटामिन डी बनाने के लिए there are certain criteria to be followed. First criteria, the sunlight should contain ultraviolet UVB rays. यूवीबी रेज है जिसमें से विटामिन डी बनता है. अगर चावल ही नहीं रहेगा तो बिरयानी कहाँ से बनेगी? सो हमारे पास जो सनलाइट आता है उसमें यूवीबी रेज होते ही नहीं है. पॉल्यूशन की वजह से अल्ट्रावायोलेट बी रेज जो होता है वो ओजोन लेयर में एब्सॉर्ब हो जाता है, वो नीचे तक नहीं आता है. इसीलिए वर्ल्ड में 90% पीपल आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी हु आर नॉट ऑन मेडिसिन. सो विटामिन D3 सप्लीमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी बनाने के लिए जो अल्ट्रावायलेट बी रेज चाहिए सनराइज रेज में वो नहीं है. जहां कम पॉल्यूशन है जैसे स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, वैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वहां पे थोड़े बहुत यूवीबी रेज मिलते हैं. बट इवन इफ यू गेट यूवीबी रेज, उसका सर्टेन क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट टू मेक विटामिन डी. वन. सेकेंड क्राइटेरिया, इट शुड फॉल on your skin at particular angle during particular duration of time for particular duration of time. जैसे 10 से 2 के बीच में 40 से 45 मिनट तक आपके स्किन पे ये एंगल पे इतने यूवीबी रेज वाले सनलाइट पड़ने चाहिए, जब भी इसमें से विटामिन डी मिलेगा. नाउ इट इज डिफिकल्ट टू मीट ऑल द क्राइटेरिया. One. Second, we all are dark skin people and we have high melanin content in our skin, which prevents vitamin D formation in our skin even if we get sunlight. इस बात का सबूत देने के लिए मैं एक ही बात बताना चाहूंगी. 1978 में एक रिसर्च हुआ था इंडियन फार्मर्स पे. आई एम टॉकिंग अबाउट 1978. और वो टाइम पे भी रिसर्च डेटा में यही पता लगा 95% ऑफ द फार्मर्स वर डेफिशिएंट इन विटामिन डी. वो लोग पूरा टाइम खेत में रहते हैं, सनलाइट में रहते हैं. तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने सुबह 10 मिनट धूप में बैठ लिया, 15 मिनट धूप में बैठ लिया और मुझे विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये याद रखें कि धूप में बैठने से विटामिन डी नहीं बनने वाला. यू हैव टू टेक सप्लीमेंट. नाउ कमिंग टू डायटरी सप्लीमेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम हमें गोली नहीं खाना है, हमें विटामिन डी का जो डायटरी सोर्स है वो बता दो, हम वो खा लेंगे. तो उनके लिए भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही वो लोग विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड सब डालते हैं, और जो लोग ये खाते हैं उनको लगता है कि बिकॉज दे हैव कंज्यूम द फोर्टिफाइड फूड दे डोंट नीड विटामिन सप्लीमेंट. उनके लिए भी मैं बता दूं, बॉडी को रोज का 2000 यूनिट विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, और अगर उतना आपको डाइट से लेना है तो रोज का 100 कप दूध पीना पड़ता है. If you think that this is humanly possible, then you don't take. Otherwise, it is my sincere request that you please take vitamin D3 60K tablets 2 times in a month, twice a month, and continue it as a maintenance dose so that you don't invite diseases in future. And last, health checkup. The way you are sending your two-wheeler or four-wheeler for the service, even if it is running well, same way you have to service your body once in a year. As per the preventive guidelines, we recommend first health check at the age of 6 years. Yes, you heard it right. We recommend first health check at the age of 6 years. उसके बाद हर 5 साल में कराना चाहिए up to the age of 20 years. और 20 years के बाद हर किसी को साल में एक बार चेकअप जरूर कराना है.
40 साल की उम्र के बाद हर किसी को डेक्सा स्कैन करवाना जरूरी है टू नो द बोन हेल्थ, और पुरुषों को अपना प्रोस्टेट का जांच कराना जरूरी है, और औरतों को फॉर फीमेल्स मेमोग्राफी। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेंटेनेंस इज इजी देन द ट्रीटमेंट। सो आई होप everyone there will understand now how important it is to take care of your health and how easy the prevention. Wishing all of you a healthy life. Have a good day, and thank you for listening peacefully.